Everyone's hands are not up. Didn't enjoy the week. Challenging week. Challenging or enjoyable, but we are still all in it together. Amen. Some may be struggling, some may be enjoying, but yet we are one family, and we have to gradually learn to share our joys and our sorrows and our struggles, right? Because we are all God's family. Okay? So come, we'll start with prayer. Oh God, we thank you, Lord, for this beautiful evening, Lord. We thank you, Master, that this is the day that you have made. This is the work that you are doing, Lord. We thank you, Lord, for your grace, for your mercy. We thank you, Lord, for your beautiful plans that you have made for the church, for each one of us, Lord, for every one of your children, Lord. We thank you, Lord God, that you are good. And we thank you that your goodness is seen in every one of our lives, O Lord God. We want to give you all the glory and we want to give you all the praise. We want to acknowledge that it is you who is blessing us, Lord. It is you who is in complete control, Lord. It is you, Lord, who is preserving us, Lord God. Oh, we thank you, Lord, for what you are doing, Master. Bless each and every member of this family, Lord. And we pray, Lord God, your hand of protection, of provision, Lord God, your hand of blessing upon every member in this family, Lord God. We thank you for what you are doing. We give you all the glory and we give you all the praise for everything that you are doing, Father. In Jesus' name we pray. Amen.
sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I know I feel like dancing. It's foolishness, I know. But when the world has seen the light, they will dance with joy like we're dancing now. I could sing of your love forever. 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 सागर पहाड़ से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल को ले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंद्राई। सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ। 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 नाचने को दिल करे, जब उठता है ये दुनिया जब देखे प्रकाश, तब वो नाचेंगे जैसे अब हम नाचे। तेरे प्यारे के गीत मैं गाऊँ। 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 I could sing of your love forever. 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 Thank you, Jesus. We could sing of your love forever, Lord. Because of your goodness, because of your love, because of your faithfulness towards each and every one of us, Lord, towards our lives. We say thank you with all our hearts. And with a thankful heart, right now we prepare for the tithes and offering. And we will pray for the tithes and offering. प्रभु का धन्यवाद दे रहे हैं कि वो जो भी इस पूरे हफ्ते में हमारे पूरे जीवन में उसने किया है, तो हम धन्यवादित हृदय से अपने भेंट हाथ में लेकर पहले हमारे दिल से हम भेंट देंगे प्रभु को और फिर हम आगे बढ़ेंगे। Father, we thank you, Father, for this day. We give you all the glory and the honor, Father. And as we bring our kids and offering this to us, Father, we ask you to bless each and every one in our lives.
ask the Father that this tithes and offering be used for your glory, for the expansion of your kingdom. Your will be done, Father. Your will be high over all in the world. God the Father in Jesus' name. तेरे साथ जिएंगे, तेरे साथ रहेंगे हमेशा यीशुआ तेरे साथ जिएंगे, तेरे साथ रहेंगे हमेशा यीशुआ तेरे साथ साथ हम तो चलते रहे, तेरा हाथ हाथ हम तो थामे रहे, साथ साथ हम तो चलते रहे, तेरा हाथ हाथ हम तो थामे रहे, चाहे जहाँ भी हम जाएंगे यीशु का नाम हम ले जाएंगे, हम सब एक होकर बोलेंगे, खुशियों से शोर मचाएंगे, हंगामा होवे जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए, हंगामा होवे जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए, सीटी बजाओ और ताली बजाओ, झूमो और नाचो और आवाज उठाओ, सीटी बजाओ और ताली बजाओ, झूमो और नाचो और आवाज उठाओ, तेरे मंदिर में हम आते रहे, तेरी जय जयकार हम करते रहे, मंदिर में हम आते रहे, तेरी जय जयकार हम करते रहे, चाहे जहाँ भी हम जाएंगे यीशु का नाम हम ले जाएंगे, हम सब एक होकर बोलेंगे, खुशियों से शोर मचाएंगे, हंगामा होवे जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए, हंगामा होवे जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए, यीशु मसीह की जय गाए, यीशु मसीह की जय गाए। Hallelujah. Come, we can sit. You're free to sit, stand, kneel. Amen. So you must be seeing on the chairs and wondering what is this. सब देख के आप सोच रहे हो कि ये क्या है? ये है गैदरिंग, मिलना। मिलना बहुत ही फॉर्मल रीति से नहीं, लेकिन एक ही परिवार के सदस्य होने के नाते, जो एक्चुअली हम हैं यीशु में। हालेलुया। हम सब यीशु के परिवार के सदस्य हैं। कितने यीशु के परिवार के सदस्य हैं? यीशु के परिवार के सदस्य हैं, है ना? हम सब तो हम एक ही परिवार के सदस्य हैं। हमारे खुद के परिवार में, घर में अगर हम देखते हैं तो हम एक दूसरे से बहुत फ्री हैं, राइट? एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के वीकनेसेस, स्ट्रेंथ्स को जानते हैं, एक दूसरे के लिए खड़े भी होते हैं, एक दूसरे के लिए झगड़ा भी करते हैं, ओके? तो यीशु के परिवार में भी उसी तरह से लागू होना चाहिए। हमें एक दूसरे के भाई बहन होने के नाते यीशु के परिवार के वो एहसास होना जरूरी है। हालेलुया। एक दूसरे को देखकर कहेंगे हालेलुया। हालेलुया। अक्सर मेरी तरफ ही देख रहे हो, एक दूसरे की तरफ देखकर बोलो हालेलुया। हम एक परिवार है। एक दूसरे को देखकर बोलो हम एक परिवार है। हालेलुया।
एक परिवार वाले एक साथ में नहीं बैठ सकते हैं. Sit somewhere else. साथ में नहीं बैठो. सिस्टर सुनंदा, आइए. सब अलग अलग बैठो. एक व्यक्तिगत परिवार के लोग साथ में नहीं बैठो, क्योंकि ये आपका घर नहीं है, आपका इंडिविजुअल फैमिली नहीं है, ये परमेश्वर का परिवार है. हालेलुया. So we'll sit separately. Why? Because we have to get used to it that we are all one family here. Hallelujah. हम सब एक परिवार है यहाँ पर. यहाँ पर जब हम आते हैं तो हम सब एक परिवार है. हालेलुया. तो हम सबको एक साथ बैठना है, सिर्फ अपने अपने परिवार के, अपने व्यक्तिगत परिवार के साथ ही नहीं. आमेन. हमें ये धीरे धीरे आदत करनी है. हमारे मन में हमें रखना है कि हम यीशु के परिवार के सदस्य हैं, क्योंकि अगर यीशु आज आए तो उसके बाद अनंत काल के लिए हम सब उसके परिवार होने के नाते साथ में रहेंगे. तो यहाँ से प्रैक्टिस करना है. हालेलुया. यहाँ से प्रैक्टिस करना है. आमेन. सो आज का थोड़ा सा टीचिंग जो है, टीचिंग नहीं कहूँगी, शेयरिंग कहूँगी. ओके. क्वायर गर्ल्स, आपसे सिर्फ मेरे दिल से मैं शेयर करूंगी आज कि ये क्या हो रहा है. हमें पता है कि हम इतने सालों से जो है एक सिस्टम अनुसार चल रहे हैं. एक सिस्टम की तरह हम हमारे सर्विस को लेते हैं, एक ऑर्डर में, एज वी से ऑर्डर. ओके. बट अगर आप न्यू टेस्टामेंट में देखो तो जो है उनका मिलना बिल्कुल भी अलग होता था. ओके. वो लोग मिलते थे एक्चुअली एक फैमिली होने के नाते. ठीक है. सो व्हेन वी कम इन द हाउस ऑफ गॉड, our conduct has to be as a family. यहाँ पर हमारा व्यवहार एक परिवार के सदस्य होने के नाते होना चाहिए. हालेलुया. तो आप बहुत फ्री हो सकते हो, आपको आगे आकर बैठना है, आपको सर्कल में बैठना है. ओके. यू कैन बी जस्ट फ्री. ओके. इफ you like that empty chairs are disturbing, you can come all front. Okay, you can make a circle, you can sit with each other, no problem. Okay. We are family. मैंने क्यों आपसे बोला अलग अलग बैठो, क्योंकि वी आर सो यूज्ड टू सिटिंग विद आवर ओन इंडिविजुअल फैमिलीज एंड वी रिमेन देयर ओनली. नाउ वी हैव टू ब्रॉडन आवर विजन. ओके. हमें अपना सोच जो है अब और चौड़ा करना है, और ये एहसास लाना है हमारे अंदर कि हम इस परिवार के सदस्य भी है. जब ये एहसास आएगा देन द बर्डन ऑल्सो विल कम. आमेन. जब एहसास आएगा तो बोझ भी आएगा एक दूसरे के लिए. Hallelujah. Very serious faces, right? What I'm saying makes sense? Yeah. We'll start 1 Timothy chapter 3 verses 14 and 15. 1 Timothy chapter 3 verse 14 and 15. यह चीजें मैं आपको लिख रहा हूं. मैं आशा करता हूं कि मैं जल्दी ही आपके पास आऊं. पौलुस तिमोथी को कह रहा है. okay? लेकिन अगर मुझे आने में देरी हुई तो इसलिए मैं आपको लिख रहा हूं ताकि आप जान लो कि आपका व्यवहार किस तरह होना चाहिए प्रभु के भवन में. हालेलुया. प्रभु के भवन में किस तरह से आपका व्यवहार होना चाहिए. वो भवन जो कलीसिया है जीवित परमेश्वर का. जीवित परमेश्वर यानी कि यीशु. तो यीशु मसीह का कलीसिया. हालेलुया. जो खंबा और सच्चाई की नींव है. हालेलुया. सो वी आर द फैमिली ऑफ गॉड थ्रू द लिविंग गॉड हु वी नो recognize as Jesus, right? We have a name.
दुनिया में वो कहते हैं परमेश्वर, लेकिन हम जानते हैं जीवित परमेश्वर, हमारे पास नाम भी है यीशु मसीह। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर कि मैं लिख रहा हूं ताकि आप जान लो कि जब आप मिलते हो, यानी कि वो कलीसिया जब मिलती है तो आप जान लो कि आपको किस तरह से रहना है। आपका नॉर्मल, आपका जो जीवन है, जब आप मिलते हो तो कैसे मिलना चाहिए, किस तरह से आपका जो यूनिटी होना चाहिए, किस तरह से आपको एक रहना है, किस तरह का जीवन जीना है, और किस तरह से एक दूसरे को प्रोत्साहन देना है, एनकरेज करना है। ओके, ऑल दिस, राइट। तो किस तरह से कंडक्ट, जब हम मिलते हैं किस तरह से कंडक्ट हमारा होना चाहिए। Acts chapter 2 verses 42 to 46, we have the answer to what should happen when we meet together। कि जब हम मिलते हैं तो क्या क्या उस समय होता था। You all believe कि उस समय कलीसिया में जो होता था आज भी होना चाहिए? Yes? विश्वास करते हैं उस समय जो होता था आज भी होना चाहिए, राइट। इसलिए पौलुस ने कलीसियाओं को लिखा कि इस तरह का व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि कलीसिया में इस तरह का व्यवहार होना चाहिए, यानी कि हर कलीसिया हर युग में इस तरह से होना चाहिए, राइट। सो हम सब इस पर अभी काम कर रहे हैं कि हम वचन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू एक्ट्स चैप्टर 2 वी विल बी ब्रिंग आवरसेल्व्स टू डू इट। क्योंकि इतने सालों में जो है हमने बहुत सारे प्रचार सुने हैं, लेकिन ऐसा होता है कि इतने सालों से भी जो है हमने ज्ञान प्राप्त किया है, लेकिन हमारा जीवन भी बदलना जरूरी है। एक परिवार होने के नाते हमारी यूनिटी भी आना चाहिए था, राइट। सो उस पर हम अब काम करने वाले हैं। हालेलुया। हैप्पी? नॉट लुकिंग एक्साइटेड। हैप्पी टू बी वन, टेकिंग द फर्स्ट स्टेप्स टू बिकम वन, टेकिंग द फर्स्ट स्टेप्स टू बी अ फैमिली। कदम ले रहे हैं एक परिवार होने के लिए। हम हैं ऑलरेडी, लेकिन वो एहसास में जीने के लिए कि हम एक परिवार है। हालेलुया। सो एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 42 टू 46, क्या वो करते थे मिलकर, और वो निरंतर प्रेरितों के सिद्धांत, संगति, रोटी तोड़ना और प्रार्थना में निरंतर जुटे रहे। हालेलुया। ये 4 तत्व जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रेरितों के सिद्धांत, संगति, रोटी तोड़ना और प्रार्थना। सबसे ज्यादा जरूरी है प्रेरितों के सिद्धांत, क्योंकि अगर प्रेरितों के सिद्धांत हमको पता है, शिक्षण हमको पता है, तो उसके अनुसार ही उसके बाद की चीजें हम कर सकते हैं। इसलिए प्रेरितों के सिद्धांत सबसे पहले लिखा गया है। तो इसलिए टीचिंग्स क्या है कि किस तरह से हम जीना है, ओके, उसके अनुसार हमको फेलोशिप करना है, राइट। सेकेंड इज फेलोशिप। सो प्रेरितों के सिद्धांत जानकर उसके अनुसार हमारा संगति होना चाहिए। हालेलुया। वी विल कम टू डिटेल्स ऑफ इट लेटर ऑन, जस्ट गिविंग एन ओवरव्यू राइट नाउ, ओके। सो हमारा प्रेरितों के सिद्धांत जानने के बाद उसके अनुसार हमारी संगति एक दूसरे के साथ हमें रखना है। हालेलुया। जब हम इस तरह से संगति रखेंगे तो सच में वो रोटी तोड़ने का, एक दूसरे के साथ तोड़ने का आनंद में हम शामिल हो सकते हैं। अभी रोटी तोड़ना और प्रभु के प्याले में भाग लेना भी उसका मतलब, वो भी हम सीखेंगे कि उसका मतलब क्या है, ओके। रोटी में हम तोड़ते हैं इस एहसास से कि अब हम हो गए एक परिवार जो प्रेरितों के शिक्षण के अनुसार हम सब जी रहे हैं, उसके अनुसार। क्योंकि हम सब जी रहे हैं, एक जैसे हो रहे हैं, तो संगति भी एक जैसा होना शुरू हो जाएगा। संगति एक तरह होना शुरू होने के वजह से रोटी और प्याले में हम एक होने के एहसास के साथ भाग ले सकते हैं। क्या होता था अब तक कि जब हम रोटी पिलाने में भाग लेते थे तो मेरे बारे में मैं सोचता था, मेरी चंगाई, मेरे पापों की माफी। लेकिन यीशु ने रोटी तोड़ा, प्याला दिया कलीसिया के लिए, ये करने के लिए, यानी कि हम सबको इसमें एक साथ एक होने के नाते भागीदार लेना है।
सिर्फ व्यक्तिगत रीति से नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इफ यू रिस्पॉन्ड, आई नो यू अंडरस्टैंडिंग। ओके, हालेलुया। ओके, those of you who want books, if you don't have, you can take from there. We have kept some books over there. हम लिखने का प्रैक्टिस करेंगे, not on mobile, books. Because your mobile, your data can delete. Your books will remain with you. Okay, so I encourage everyone, take your books always and start writing. क्योंकि जब आप लिखते हो तब वो नोट्स आपके पास होते हैं हाथों में, और वो नोट्स से आप फिर दूसरों को सिखा पाओगे, राइट? अगले महीने में अगर कोई आया कुछ पूछा तो आप मोबाइल में कहाँ ढूंढोगे? बुक है तो आप फटाक से खोल सकते हो, राइट? तो इसलिए बुक में लिखना अच्छा है। प्रेज गॉड। वी आर फैमिली, वी कैन स्पीक टू ईच अदर। हम एक परिवार है, एक दूसरे के साथ खुले से बात कर सकते हैं, राइट? सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक परिवार में जैसे हम आपस में, हमारे व्यक्तिगत परिवार में खुले रीति से सब बोलते हैं, आज ये हो गया, अरे ये बोला, अरे ऐसा हो गया था, राइट? तो ऐसा शेयरिंग हमारे परिवार में, इस परिवार में भी होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि जब हम इस तरह से शेयर करेंगे, हम एक दूसरे को जानने लगेंगे, एक दूसरे को समझने लगेंगे। जितना समझने लगेंगे उतना प्यार फिर हम कर सकते हैं, सिर्फ बोलने से नहीं लेकिन करने में भी। आमीन। ओके। उसके बाद हर व्यक्ति में प्रभु का भय आया और बहुत सारे चिन्ह चमत्कार हुए प्रेरितों के द्वारा। अब सभी जिन्होंने विश्वास किया वो इकट्ठे हुए, सभी जिन्होंने विश्वास किया सभी इकट्ठे मिले, और उनके बीच सब कुछ, सारी चीजें सामान्य थी। कैसे? उन्होंने अपनी सारी संपत्ति, सारी चीजें बेचकर आपस में उसको बांट दिया, जैसे कि हर एक को जरूरत थी। यानी कि उनकी एकता का स्तर वहां तक आया था। हालेलुया। यानी कि तेरा मेरा नहीं था, राइट? वो तेरा, ये मेरा, हमारा। आमीन। हमारा यीशु, हमारा विश्वास, राइट? और इसलिए वो हर रोज एक होकर मंदिर में मिलते थे। कब? हर रोज। कब मिलते थे? सिर्फ संडे को? हर रोज। जब एकता उतनी बढ़ती है तो और एक साथ समय बिताने का मन करता है, करेक्ट? जब किसी के साथ हमारी अच्छी बनती है तो हम ज्यादा समय उस व्यक्ति के साथ बिताते हैं, है ना? इसलिए दोस्त सहेली बहुत बार तो बातें खत्म ही नहीं होती है, क्योंकि एकता है उनमें, राइट? तो हम सबके अंदर उस तरह से एकता आना चाहिए कि हम सब कुछ एक दूसरे के साथ शेयर कर पाए। हालेलुया। वो कब होगा? जब हम एक दूसरे के साथ पहले खुले से बात करना शुरू करेंगे तो। आमीन। ओके। हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार जो है, हम ज्यादा करके एक दूसरे के साथ अपने आप को खोलने की आदत है नहीं, लेकिन हमें शुरू करना है, क्योंकि हम बाहर वालों के साथ अपना जीवन नहीं बांट रहे हैं, यीशु मसीह के परिवार के सदस्यों के साथ हमारा जीवन बांट रहे हैं, जो उसी परिवार के सदस्य है, यीशु के परिवार के सदस्य। और अब सबको अनंत काल के लिए एक साथ ही जीना है, राइट? तो अब से ही हमको प्रैक्टिस करनी है। हालेलुया। जितना हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे उतना एहसास में हम जिएंगे कि यही परिवार हमारा सब जो है, हम वहां पर भी अनंत काल के लिए भी साथ में रहने वाले हैं। हालेलुया। नहीं तो वहां पर एक साथ में रहेंगे, फिर हम कहेंगे अरे इतना अच्छा है, वहां पर भी हम कर सकते थे ना। हालेलुया। तो यहां पर से हम करना शुरू करने वाले हैं। आमीन। ओके।
हर रोज वो मंदिर में मिलते थे एक होकर, घर घर में रोटी तोड़ते थे। एवरी हाउस दे मेट, दे ब्रोक ब्रेड, राइट। तो जब भी वो मिलते थे वो रोटी तोड़ते थे, राइट। क्यों हर हर रोज क्यों रोटी तोड़ना? बिकॉज इट्स अ रिमाइंडर, हमें याद दिलाने के लिए कि हम प्रभु में क्या है और हमको क्या मिला है, हम कौन है प्रभु में, हमको क्या मिला है प्रभु में। एक परिवार होने के नाते वो खुशी, वो आनंद रोज रोटी तोड़कर हम याद करते हैं। हालेलुया। एंड दैट्स व्हाई द वर्ड सेज ब्रेक ब्रेड एज ऑफन एज यू कैन, आमेन, सो दैट यू आर एक्सप्रेसिंग योर जॉय। तुम्हारा आनंद जो प्रभु में आप हो, वो आनंद रोज होना चाहिए, सिर्फ संडे को नहीं। जब आप काम पे जाते हो होना चाहिए, जब आप स्कूल में जाते हो तब होना चाहिए, करेक्ट। जब आप ट्रैवलिंग करते हो तभी भी होना चाहिए प्रभु का आनंद, राइट। तो वो आनंद जब निरंतर आप एंजॉय करोगे तो आप रोटी प्याले में भी हमेशा निरंतर पार्टिसिपेट कर सकते हो, राइट। क्योंकि रोटी और प्याले में हम दर्शाते हैं कि हम सच में एक है, आमेन। जैसे मैंने कहा डिटेल में हम धीरे धीरे जाएंगे, अभी मैं सिर्फ आपको एक समरी दे रही हूं कि असल में गैदरिंग कैसे एक्चुअली होना चाहिए। घर का रोटी तोड़ने के बाद उन्होंने भोजन किया साथ में उत्साह के साथ। तो भोजन मिलने में शामिल है, हालेलुया, राइट। भोजन एक साथ करना शामिल है। भोजन सिर्फ एक साथ खाना नहीं, भोजन एक साथ बनाना भी हालेलुया, राइट। नहीं तो एक ही व्यक्ति के ऊपर सब हो जाएगा, ऐसा नहीं। ओके, वी आर फैमिली, हम एक परिवार है। जैसे घर में एक काटने का काम करेगा, एक भुनने का काम करेगा, राइट। फिर साथ में बैठ के सब लोग खाएंगे, राइट। तो जैसे घर में हम अलग अलग काम करते हैं, कोई क्लीनिंग करता है, कोई कुकिंग करता है, कोई स्यूइंग करता है, ओके। सो हम सबके पास प्रभु ने अलग अलग वरदान दिए हैं, है ना। हर एक का वरदान अलग अलग, हर एक का गुण अलग अलग है। तो हमारे गुण यहाँ पर भी इस परिवार में भी हमको यूज करना है, हालेलुया। अगर एक को स्टिचिंग नहीं आता है, कुछ स्टिचिंग करना है घर पे, तो दूसरे को अच्छा स्टिचिंग आता है तो वो ड्रेस उसको देगा, जरा स्टिचिंग करके दो, हालेलुया। दैट इज फैमिली, वो है परिवार। मेक सेंस? हैप्पी टू हियर व्हाट आई एम सेइंग? या, हालेलुया। दिस इज द फैमिली दैट वी हैव टू बिकम। ये है परिवार जो हमको बनना है प्रभु में, क्योंकि यही परिवार को लेने यीशु आने वाला है, हालेलुया। अगर हमारे बीच में एकता नहीं है तो फिर कैसे यीशु लेकर जाएगा? बोलेंगे यहाँ पर ही आप एक नहीं रह सकते हो, तो वहां कैसे रहोगे, राइट। तो यही से हमको शुरू करना है, एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे के साथ एक परिवार होने के नाते जीना, यही से शुरू करना है, हालेलुया। कैसे ये संभव है? ये सारी चीजें एक होना इस तरह से, ऐसे स्तर पर कैसे संभव है? मनुष्य के साथ ये असंभव है, लेकिन परमेश्वर के साथ ये संभव है, हालेलुया। मैथ्यू 19:26, राइट। हमको सब स्क्रिप्चर्स पता है, राइट, बट एप्लीकेशन, नाउ वी विल अप्लाई एवरी स्क्रिप्चर। With man it is impossible. You say, how I'll become one with that person? Yeah. कैसे मैं वो व्यक्ति के साथ हो जाऊं? मनुष्य के साथ ये संभव नहीं है, लेकिन परमेश्वर के साथ ये संभव है, हालेलुया। एक दूसरे को बोलेंगे परमेश्वर के साथ संभव है। Everything is possible for God, हालेलुया। परमेश्वर के साथ सब बातें संभव है, हालेलुया। सुना नहीं मैंने? टेल ईच अदर, एवरीथिंग इज पॉसिबल विद गॉड। परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है, आमेन। ओके, तो जब हम मिलते हैं, जैसे मैंने कहा, यीशु के परिवार होने के नाते मिलते हैं,
परिवार, यीशु के परिवार के सदस्य ऑलरेडी हम हैं, इसलिए हम मिलते हैं। इसलिए नहीं कि हम परिवार जैसे हैं, हम परिवार है। हालेलुया। एक दूसरे से मिलेंगे अभी, और एक दूसरे से मिलकर बोलो कि हम एक परिवार है। हालेलुया। Shall we go meet each other? I don't want to just preach. Let us practically knit our hearts together. हमारे दिल हम जोड़ेंगे, जोड़ना शुरू करेंगे, हमारे दिलों को जोड़ना शुरू करेंगे। हालेलुया। Oh, thank you Jesus. Thank you Lord for what you are doing. Thank you Jesus. हमारे दिलों को हम जोड़ रहे हैं। हालेलुया। हम एक परिवार है, हम एक परिवार है। तुम्हारे दुख मेरे दुख, तुम्हारे सुख मेरे सुख, मेरे संघर्ष में तुम मेरे साथ हो, मेरे कठिनाइयों में तुम मेरा सहायक बनोगे। हम एक परिवार है, सारी चीजें हम बांटेंगे साथ में। हालेलुया। यस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। दक्ष, हालेलुया। हम सब एक परिवार है, छोटे बड़े बुजुर्ग सारे एक परिवार है। हालेलुया। हम एक परिवार है। तो हम एक परिवार है तो कभी भी एक दूसरे को कॉल कर सकते हो। एक परिवार के हैं सब, तो कभी भी एक दूसरे को फोन कर सकते हो। अचानक से कुछ काम आया और ज्यादा हाथ की जरूरत है, अपने परिवार वालों को बुलाओ। हालेलुया। कुछ भी घर पे काम करना है और हाथों की जरूरत है, अपने परिवार वालों को बुलाओ। ये परिवार बहुत बड़ा है, अगर एक बिजी है काम में तो दूसरे को बुलाओ, जरूरत पड़े सब लोग को बुलाओ। हालेलुया। दैट्स फैमिली, कि हम एक दूसरे को बुला सकते हैं जब हमको किसी चीज की जरूरत हो। हालेलुया। या हमारे हाथ को बढ़ाएंगे एक दूसरे की तरफ, कोई भी चीज करने के लिए हम हाथ बढ़ाएंगे। आमीन। या जब हम मिलते हैं, हम यीशु के परिवार होने के नाते मिलते हैं, यीशु के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार। हालेलुया। यीशु में जो है वो मिलते हैं, यीशु के परिवार होने के नाते हम मिलते हैं यीशु के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार। वो बहुत जरूरी है, हमारे दिमाग से नहीं। अब मैं ये सोचता हूं नहीं, यीशु क्या सोचता है। आमीन। और इसीलिए एक दूसरे को भी हम पूछ सकते हैं, वचन द्वारा मार्गदर्शन हम एक दूसरे की कर सकते हैं। हालेलुया। कोई संघर्ष में है, दुख में है, तो वचन से प्रोत्साहन दो। आमीन। वचन के अनुसार प्रोत्साहन दो। राइट? Because the word of God brings comfort, the word of God brings joy, the word of God brings encouragement. Correct? जो भी हम करते हैं, जिस तरह का जो भी हम जीवन जीते हैं, वो यीशु में हम जिए, क्योंकि हम नहीं जीते हैं लेकिन यीशु मुझ में जीता है। हालेलुया। गलेशियंस 2:20। और अगर यीशु हम में जीते हैं तो हमें पवित्र होना है जैसे कि वो पवित्र है। राइट? 1 Peter chapter 1 verse 15 and 16 says that be holy as he is holy. Right? So हम सबको अपने आप को हमेशा पवित्र रखना है। ओके? यस, कमजोरियां हर एक में है, एक चीज नहीं तो किसी और दूसरे चीज में, सभी के अंदर किसी न किसी तरह की कमजोरी हो सकती है। ओके? लेकिन हमें उससे बाहर आना है,
बाहर आने के लिए हमें अकेले ही संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, हम सबको एक दूसरे की इसमें हेल्प करनी है। आमेन। ओके, और एक दूसरे की हेल्प करते समय हम प्रेम से करें, ना कि उस व्यक्ति को नीचे गिराने के लिए, लेकिन उसको उठाने के लिए, क्योंकि यीशु के परिवार के होने के नाते ये पूरा परिवार, ये हर एक सदस्यों को जाना है। हालेलुया। तो कोई भी पीछे न छूटे, राइट। अगर कोई धीमे चल रहा है तो उसको साथ में लेकर जाना है, so that we all win the race, correct, that nobody will be disqualified. At least जो परिवार, ये परिवार जो परमेश्वर का है, जो इस एरिया में प्रभु ने यहाँ पर हमको दिया है एक दूसरे का साथ, इसमें पहले हम कार्य करें जैसे प्रभु ने कहा। जब ये हो जाएगा तब फिर यहाँ से हम फिर दूसरे जो आते रहेंगे उनके लिए ऑलरेडी यहाँ पर उदाहरण होगा। हालेलुया, आमेन। मेक सेंस, राइट? सो विल स्टार्ट लिविंग एज अ फैमिली, स्टार्ट बीइंग फॉर ईच अदर। एक दूसरे के साथ अब परिवार होने के नाते जिएंगे। स्टार्ट बीइंग फॉर ईच अदर, ओके। हाउ मच यू कैन डू फॉर ईच अदर, जितना हो सके एक दूसरे के लिए करो, ओके। हालेलुया। जितना हो सके एक दूसरे के लिए करो, और उसके लिए जितना हो सके जब भी चाहिए एक दूसरे को फोन करो, ओके। क्योंकि अब आप सिर्फ अपने व्यक्तिगत परिवार में नहीं हो, आप यीशु के परिवार के सदस्य हो। हालेलुया, ओके। बिकॉज व्हेन वी रियली डू दिस, अगर आप सच में ये करने में मन लगाओगे तो यू विल बी फ्री, आप आजाद रहोगे, आप आनंदित रहोगे, क्योंकि आपका बड़ा परिवार है। हालेलुया। या वैसे तो पवित्र आत्मा तो है ही हमारे अंदर, हम सबके अंदर, वो हमारा मार्गदर्शन करता ही है, हमको बताता है क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह से करना है, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए था। प्रभु हम सबसे बात करते हैं, राइट। वो तो हम उसकी आवाज़ सुनते हैं, वो छोटी सी आवाज़, राइट। तो वो तो हमारा मार्गदर्शन करता है, लेकिन अभी हमें करनी में ध्यान देना है। स्टार्ट अप्लाइंग, ओके। विल स्टार्ट अप्लाइंग principles of God in our lives, okay? जब हम इस तरह से एक हो जाएंगे तो ही दुनिया हमको अलग देखेगी। 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 and 17, it says rejoice always, right? Rejoice always. So we'll rejoice always automatically when we know we are not alone. Amen. Because we know that God is with us, परमेश्वर हमारे साथ है, तो संघर्षों में भी हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, और हमें विश्वास है कि जो भी हमारे जीवन में होता है वो अच्छा ही होता है। वचन कहता है कि whatever happens to those who love him will happen only for good of them, right? So rejoice in everything that happens. जो भी होता है उसमें आनंदित रहो। हालेलुया। और जब हम सब एक दूसरे के साथ जुटे रहेंगे तो अगर कठिनाई है तो भी हम साथ में आनंदित होकर हम आगे बढ़ते रहेंगे। हालेलुया। सो रिजॉइस ऑलवेज, डोंट हैव टू बी अलोन एंड सेक्लूडेड एनीमोर। विल रिजॉइस ऑलवेज, प्रे विदाउट सीजिंग, राइट। व्हाट इज प्रे विदाउट सीजिंग? प्रे विदाउट सीजिंग यानी कि पूरे दिन भर, रात में अगर आप जागे हो, नींद नहीं आ रही है, प्रे विदाउट सीजिंग। हालेलुया। हर चीज में प्रे करो। जब आप काम कर रहे हो, कुछ कठिन लग रहा है, प्रे विदाउट सीजिंग, राइट। कुछ कर रहे हो आप स्कूल में, कॉलेज में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्रे विदाउट सीजिंग, राइट। दैट इज प्रे विदाउट सीजिंग, मीन्स कंटिन्यूअली बी इन प्रे, पुट लिफ्ट एवरीथिंग टू गॉड, क्योंकि आपका जीवन उसके हवाले है, हम सबका जीवन परिवार होने के नाते उसके हवाले है। तो अगर कुछ भी हुआ, हम नहीं हैंडल कर सकते, किसको बताएंगे? हमारे परमेश्वर यीशु को बताएंगे कि हम उसके परिवार के सदस्य हैं, है ना। कुछ भी हो जाएगा तो किसके पास जाते हैं सब? डैडी, राइट। तो कुछ भी हो जाएगा, कहाँ जाना है? डैडी। हालेलुया। या
गिव थैंक्स इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, हर परिस्थिति में धन्यवाद दो। हालेलुया। When we start living like this, then automatically the world will see that we are different. इस तरह से जब हम जीना शुरू करेंगे तो दुनिया देखेगी कि ये अलग है। ये लोग कौन लोग? मसीही लोग। हालेलुया। मसीही लोग अलग लोग हैं, ये उनको दिखना चाहिए। जब वो देखेंगे तो खुद ब खुद आकर्षित होंगे और जानने के लिए, और फिर हम उनको बता सकते हैं कि वो भी इस परिवार में शामिल हो सकते हैं यीशु के द्वारा। हालेलुया। क्योंकि उद्धार हमको सिर्फ अपने बीच ही नहीं रखना है, यीशु आए पूरे दुनिया के लोगों के लिए, राइट? तो हमारे अंदर जब हम सब ठीक रखेंगे तो ऑटोमेटिकली बाहर के लोगों को भी आशा मिलेगा कि वो भी इस तरह का जीवन का आनंद ले सकते हैं, राइट? नहीं तो हमारे जीवन और उनके जीवन में क्या फर्क रहेगा? कुछ फर्क है ना, क्योंकि हमारा जीवन, हमारा ये जीवन शैली अनंत जीवन शैली है, राइट? वी आर लिविंग अ इटर्नल लाइफ राइट फ्रॉम नाउ, सो व्हाई नॉट एंजॉय द फुलनेस? उसकी भरपूरी अभी से क्यों नहीं एंजॉय करें? हालेलुया। यहाँ सिर्फ शिक्षण सुनने नहीं है, यहाँ से ही हमको जीना है। नहीं तो अभी हमको यीशु का परिवार बनाने का मतलब क्या? अभी से हमको यीशु के परिवार के सदस्य बनाए गए हैं ताकि हम यीशु के परिवार के सदस्य होने के नाते जिए भी। सिर्फ दिमाग से नहीं जानना, लेकिन जीवन शैली भी उस तरह से होना चाहिए एक दूसरे के साथ। तो जैसे हमने कहा कि, जैसे हमने देखा कि 4 चीजें हैं, राइट? इंपॉर्टेंट चीजें जो हर गैदरिंग में होनी चाहिए, राइट? अपोस्टल्स डॉक्ट्रिन, उसमें सक्षम होने के लिए हमारा बिल्ड इंटरनेशनल के कोर्स जो हम कर रहे हैं, उस पर हम इसलिए जोर दे रहे थे ताकि अपोस्टल्स डॉक्ट्रिन विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वी विल बिकम स्ट्रॉन्ग इन दैट। सो दैट इज द रीजन एवरी वन ऑफ यू should do the build courses, whether you are writing or whether you are not writing. Do it because you will learn the principles of God, the principles of Christ you will learn, right? जब हम सीखेंगे कि पहले सिद्धांत क्या है, कि यीशु के सिद्धांत क्या है, यीशु के निर्देशन क्या है, फिर जानने के बाद उसके अनुसार ही हम जी पाएंगे ना। अगर हमको रूल्स ही नहीं पता तो फिर निभाएंगे कैसे? पहले रूल जानना जरूरी है ना। रूल्स जानेंगे तो उसके अनुसार हम जिएंगे। तो रूल्स जानने के लिए हमको पहले जानना है कि रूल्स क्या है। तो फॉर दैट वी हैव द बिल्ड इंटरनेशनल कोर्सेज। दैट इज नॉट जस्ट अ कोर्स, इट इज आवर लर्निंग, इट्स अपोस्टल्स डॉक्ट्रिन व्हिच वी आर लर्निंग। हम सीख रहे हैं वो। हालेलुया। सो अपोस्टल्स डॉक्ट्रिन इज इंपॉर्टेंट, नॉट अ चॉइस anymore. Everyone from our family will do the build international. How many say hallelujah? No hands are going up. Only saying hallelujah. Hands should go up. Whether you can write or you can't write. अगर लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो कोई बात नहीं, सब सुन सकते हैं। हालेलुया। हम में से प्रेज गॉड, देयर इज नोबडी हु कैन नॉट हियर। सब सुन सकते हैं, सब समझ सकते हैं। तो वील ऑल डू द बिल्ड इंटरनेशनल सो दैट हम करेंगे ये कोर्स, क्योंकि हमको प्रभु के वचन में मजबूत होना है। जब हम प्रभु के वचन में मजबूत होंगे तो उसके अनुसार हम जी सकते हैं और एक दूसरे को भी जीने में सहायता कर सकते हैं। हमारी सोच से नहीं, हमारे प्लानिंग से नहीं, हमारे जो समझ से नहीं, वचन के समझ से, वचन के निर्देशन के अनुसार हम एक दूसरे को प्रोत्साहन कर पाएंगे। अगर कोई व्यक्ति वचन नहीं जानता है, खुद से बोल रहा है, तो कौन सुनेगा? लेकिन वचन से जब आप बताओगे तब ऑटोमेटिकली हमारी आत्मा, जिसमें प्रभु की आत्मा भी है, ऑटोमेटिकली ही विल एक्सेप्ट, राइट? सो थ्रू गॉड्स वर्ड वी विल हेल्प ईच अदर, एज वी लर्न वी विल टीच ईच अदर। आमेन। जितना हम सीखेंगे एक दूसरे को सिखाएंगे। हालेलुया। इसलिए बिल्ड के कोर्स पहले से ही हमने कहा, this is not just a course, it's not just certificate, it is instruction for our Christian living. Hallelujah. To understand the instruction, to know the instruction, निर्देशन जानना, निर्देशन समझना, क्योंकि जब हम सीखेंगे समझेंगे तब उसके अनुसार हम जी सकते हैं। Then according to that we can live. When we know it, then we can live, right? The more we know, the more we can live in more fullness, right?
The more word we know, the more instructions we know, the more areas of instructions we know, the more we can guide others in more areas. अगर हमको इस एरिया में क्या करना नहीं पता, हमने नहीं सीखा, तो हम किसी और को हेल्प कैसे कर पाएंगे? Right? So we learn so that we can teach others also. Right? We grow and then we help others also grow. Hallelujah. रोटी तोड़ना, रोटी तोड़ना हमको इतने शताब्दियों से आदत है कि हम रोटी और प्याले के समय में बहुत धार्मिक हो जाते हैं। अचानक से याद आता है, अरे मैंने कोई पाप किया है। क्यों रोटी तोड़ने के समय में हमको ध्यान देना है कि अगर मैंने कोई पाप किया है तो प्रभु मुझे माफ करो? हर पल हमको अलर्ट होना है कि अगर कुछ मैंने किया तो वही के वही उसको मेरे बोर्ड से, मेरे जीवन के रिकॉर्ड से मुझे निकालना है। मुझे रोटी प्याले में भाग लेने के समय के लिए इंतजार नहीं करना। वी हैव टू बी रेडी ऑल द टाइम, राइट? तो जब हम इसमें भाग लेते हैं, ऑलरेडी वी आर रेडी। हालेलुया। विल कम टू दैट ऑल्सो इन डिटेल, ओके? जो हाउस चर्चेस में ऑलरेडी ऑल नो, ओके? विल कम टू द डिटेल्स। तो जब हम रोटी प्याले में भाग लेते हैं, इन शॉर्ट, वी कम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। Hallelujah. And we partake in joy that this is all the blessings we have got because of Jesus, and we are partaking in it as a family. Hallelujah. रोटी प्याले में, जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि ये मेरे व्यक्तिगत के लिए नहीं है। रोटी और प्याला यीशु ने उसके परिवार के सदस्यों के लिए, सबके लिए दिया है, साथ में इसमें भागीदार होने के लिए। ओके? संगति, जैसे मैंने कहा, एक दूसरे को प्रोत्साहन देना अब से शुरू करेंगे। एक दूसरे को प्रोत्साहन देना, एक दूसरे को सिखाना, एक दूसरे की सहायता करना, ओके? ये सब हम एक दूसरे के साथ करना शुरू करेंगे। एक ही टाइम पे बहुत सारा बिरयानी नहीं खा सकते हैं, धीरे धीरे धीरे, ओके? आ जाएगा, ओके? लेकिन कीप इन योर माइंड, यू आर गॉड्स फैमिली एंड यू हैव टू लिव लाइक दैट। Hallelujah. You are means you all are the family here in this place, and here as a family we'll live as a family, not as strangers. Hallelujah. हम यहाँ पर अनजान बन के नहीं, लेकिन परिवार होने के नाते जीना शुरू करेंगे। Hallelujah. नहीं सुनाई दिया? Hallelujah. और एक दूसरे के लिए प्रेयर करते रहो। Keep praying for each other. जितना एक दूसरे का बोझ जानेंगे, एक दूसरे के बोझ उठाने में मदद करेंगे, automatically we'll pray also for each other, right? Because then we will start being aware of each other. Okay, that person, this. So we'll keep in prayer. Sometimes you may just look at the person and back of your mind you will pray. Not necessarily you have to, say loudly. Have a heart of praying for each other. Have that burden for each other, right? As you start caring for each other with the realization that we are one family, so we have to help each other out, right? Automatically all the other things will happen, okay? And as we do that, जैसे हम ये सब करेंगे, तो unity भी automatically आती रहेगी। वो unity जिसके वजह से पवित्र आत्मा नीचे आई थी, right? They all met in one accord in the upper room. जब ऐसे एक हो जाएंगे, then everything will happen. Hallelujah. Everything will happen because जब हम जिएंगे with the fear of the Lord in our lives, प्रभु का भय रखकर, with humility, नम्रता के साथ हम जिएंगे, counting each other better, एक दूसरे को हमसे बेहतर समझकर, automatically then things will start coming together, becoming one. Okay? Count each other better than yourself. हमें एक दूसरे को अपने से ज़्यादा बेहतर समझना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। The more you understand, thank God that His grace has made you understand. Hallelujah. And pray for those who don't understand, that they will also understand. God,
तो जब हम मिलते हैं हमें क्या करना है? जब हम घर कलीसियाओं में मिलते हैं, हमने पढ़ा ना, घर घर में मिलकर वो रोटी तोड़ते थे। ओके, तो हम उसमें आएंगे अभी। जब हम घर कलीसियाओं में मिलते हैं, ओके, हम जानते हैं हमारे घर कलीसिया में कौन कौन है, राइट? यू ऑल पार्ट ऑफ इट, दिनेश, all part of it, right? Sister Lutz, you have a choice. If not Gomes Garden, then you can also go to Sister Catherine's house. It's closer for you. Or you can come here in church also on Saturdays. Osborne is meeting here. You let me know what is feasible for you, or any other day, whatever. Yeah, you can speak with me, and then we can go accordingly, whichever place is comfortable. Okay. So हम चाहते हैं कि इस परिवार के सर्व सदस्य किसी न किसी घर कलीसिया का भाग हो। हर दिन अलग अलग दिन लेकर जो है अलग अलग घर में आप मिल सकते हैं, ताकि वी आर पार्ट ऑफ अ स्मॉल लिटिल गैदरिंग ऑल्सो। ओके, एक छोटा सा भी हम साथ में रहेंगे तो इजी हो जाएगा। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर भी हम नहीं कर सकते, यहाँ पर करने के लिए भी मजा आएगा। इमेजिन वी आर हैविंग अगापे एवरी संडे। सोचो हर संडे को हम अगापे करेंगे। दैट आल्सो वी विल अल्टीमेटली इट विल कम टू दैट। ओके, अल्टीमेटली इट इज गोइंग, उसी में आना है, क्योंकि हम यहाँ से जाते हैं घर जाने के बाद खाना खाते हैं कि नहीं, राइट? पहले से ही पका कर रखते हैं और फिर यहाँ से घर जाकर हम खाना खाते हैं, करेक्ट? सो हम खाना यहाँ पर लाकर यहाँ एक दूसरे के साथ शेयर कर खाएंगे, फिर घर जाकर सो जाएंगे। हालेलुया। व्हाई मील इज इंपॉर्टेंट? क्यों ये अगापे, क्यों रोज चाहिए खाना? खाने के बारे में नहीं है, टाइम एक साथ स्पेंड करने के बारे में है। क्योंकि अगर हम साथ में खाना खाते हैं तो खाना खाते समय हम बहुत सारी चीजें एक दूसरे के साथ बात करते हैं, करेक्ट? व्हेन वी आर ईटिंग टुगेदर वी शेयर लॉट ऑफ थिंग्स विद ईच अदर। अरे ऐसा हुआ, अरे कैसे हो, अच्छा वो आया था क्या, ये सब बातें मील्स में होता है। जिस दिन हमारा यहाँ पर खाना होता है या कुछ ऐसे गेट टुगेदर होता है, तो हम कैसे बहुत फ्री होकर बात करते हैं एक दूसरे के साथ, सब बताते भी है ना? तो मील हेल्प्स इन दैट। द थिंग इज दैट व्हेन वी हैव अ मील टुगेदर, it is an opportunity for us to talk to each other, share with each other, because otherwise you all are busy with work throughout the week, busy with college, throughout the week you all are busy. So on a Sunday, if we are meeting together, if we just come and hear and go, we've been coming and hearing and going, कुछ फर्क ज़्यादा नहीं है, right? But actually like a family, if we have to become, we'll start with having meals together. We'll bring our food and come. Hallelujah. We'll bring our food and come and we'll share with each other. We'll have a meal time together so that we can talk to each other. Amen. The point is that we can talk to each other at that time. We can meet each other. If someone is sad, we can lift that person up. Okay? Hallelujah. If someone is very happy, something has happened, that person will give sweets. Wow. Just sharing. Could be anything. Bottom line is a time together so that you all get to talk. भोजन एक एक्सक्यूज है मिलने के लिए, बात करने के लिए, to get to know each other, to bond together. So when we are talking, the bonding will start happening. Hallelujah. Imagine like this every day if we meet. क्या होएगा? Those used to meet every day. Sister Catherine, Sister Helen, Sister Sunanda. How was the experience? We used to meet every day. Looking forward. It was an enjoyable time because every day we used to meet. So many things we used to talk about. So like this, when we meet regularly, lot of things all will talk. Automatically the knitting will come. Right? The knitting will come automatically. That's the reason for the meal. Okay? भोजन खाने का वो उद्देश्य है कि हम एक दूसरे के साथ बात करने का मौका हमको मिल जाए, एक दूसरे को और जानने का मिल जाए मौका, एक दूसरे के लिए प्रेयर करने का मौका और ज्यादा मिल जाए. The more we know each other, the more we can pray for each other, right? Specific, not general. I'm not talking a general. Specific.
If I know you, I talk to you, you tell me something, I can pray for that, right? तो आते हैं अभी जब आप मिलते हो घर कलीसिया में, ओके, व्हेन यू मीट टुगेदर इन योर हाउस. Why we said meal? Because as I said, you can share. So in your house, when you are meeting in a house church, you are a few people, right? So it's easier to all to share. Everybody can share. If you are in a smaller group, if you are in a big group, imagine if everybody is going to talk, then we would have to have the whole day, right, on a Sunday. So house groups, if we meet, we are small. थोड़े थोड़े लोग हैं हाउस ग्रुप में, तो हम सभी बात कर सकते हैं, सभी शेयर कर सकते हैं. हफ्ते में क्या हुआ, हफ्ते में आपने क्या किया, क्या क्या सोचा, क्या प्लानिंग किया, कौन से प्लान फेल हो गए, शेयर करो. छोटे ग्रुप में जब आप शेयर करोगे, इट विल स्टार्ट, यू विल अंडरस्टैंड, आपको समझ में आएगा बॉन्डिंग का मतलब, और उसका आनंद का मजा आपको आना शुरू हो जाएगा. हालेलुया. छोटा है ग्रुप तो आप कर सकते हो, आप सभी शेयर कर सकते हो वहां पर. तो हाउस ग्रुप में फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है. जब आप मिलते हो घर कलीसिया में तो फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है. ओके, लाइक स्टार्टिंग प्रेयर, सॉन्ग, वर्ड जो पहले से ही तैयार है, नहीं, जरूरी नहीं है. क्योंकि आई बिलीव एवरीवन हैज इनफ नॉलेज ऑफ द वर्ड. अभी एप्लीकेशन का टाइम है. हालेलुया. हम नहीं से हालेलुया टू दैट. वी नो लॉट ऑफ थिंग्स बट इट्स टाइम टू अप्लाई. एप्लीकेशन इज टफ, लर्निंग इज इजी, लेकिन उसका एप्लीकेशन, उसके ऊपर एफर्ट्स आएगा. आमेन. वी हैव टू ट्रेन आवरसेल्व्स टू गेट इनटू दैट. तो जब आप मिलते हैं आप फ्री हो सकते हो. एक सेट जो पैटर्न की जरूरत नहीं है. ओके, हफ्ते भर में आप क्या सोच रहे हो, क्या क्या हो गया, बॉस ने क्या बोला, आपके बाजू वाले जो बैठी है उसके साथ क्या हुआ, जो आपका उसके साथ जो बात हुआ, क्या बातें हुई प्रभु के बारे में, गॉसिप नहीं. हालेलुया. इस तरह से when we will start sharing, we will realize whole day or whole week we have to live in Christ. यीशु में हमको जीना है. तो बॉस के साथ कोई चांस मिला, प्रभु के बारे में बात करो. कलीग के साथ चांस मिला, प्रभु के बारे में बात करो. उनके साथ अपना टेस्टिमनी शेयर करो. Share your life testimony with them when they talk about a challenge. Share your experience, how you overcame. Hallelujah. This way you will also tell others. You are introducing others Christ. आप यीशु का परिचय उनको दे रहे हो अपने पूरे हफ्ते में. हालेलुया. आप ये करने की कोशिश करो, फिर देखो कितने टेस्टिमनीज और कितनी सारी बातें प्रभु में आप बात कर सकते हो. नहीं तो सब हम यूजुअली प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें में पटापट पट 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 हम बोलते हैं, राइट. वी टॉक अ लॉट अबाउट आवर प्रॉब्लम्स, बट व्हाट अबाउट आवर टेस्टिमनीज थ्रू द वीक. हमने क्या किया प्रभु में होकर, क्या किया, कौन से बातें किए, क्या क्या सोचा. हालेलुया. दैट विल चेंज our lifestyle, that will change our habits throughout the week, throughout our life. Amen. Then Sunday when we meet, we all rejoice together that we had a lovely week. Hallelujah. Yeah, we rejoice in our house churches, and when we meet here we all rejoice together. Hallelujah. तो जब भी आप एक दूसरे को हेल्प करो, प्रोत्साहित करने में, एज आई सेड, वचन से, ओके, वचन अनुसार हमको प्रोत्साहन देना है. हम जो भी जीवन जीते हैं, जो भी करते हैं, वचन अनुसार एवरी एरिया लेट इट बी अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ क्राइस्ट. ओके, देन ऑटोमेटिकली वील हैव टेस्टिमनीज फॉर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ क्राइस्ट, और फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ क्राइस्ट. वोंट इट बी लवली? We'll all come on a Sunday. This happened. This came in my mind, and something new plan. God put on my heart something this. Wow, what exciting life! कैसे अद्भुत हमारा जीवन हो जाएगा, उत्साह से भरा हुआ.
अब आते हैं रोटी प्याले में। ओके, यीशु ने रोटी तोड़ा और प्याला बांटा, रोटी और प्याला अपने शिष्यों के साथ उसने बांटा, राइट। जो भी वहां पर मौजूद थे उन सब वो सभी उसमें शरीक हुए रोटी तोड़ने में। 1 Corinthians chapter 11 verse 33, it says, therefore my brethren, when you come together to eat, wait for one another। एक दूसरे के लिए इंतजार करो। क्यों? क्योंकि जब हम एक दूसरे के लिए वेट करेंगे तो और ज्यादा लोग शरीक होके हम सभी के आनंद में शरीक हो सकते हैं। तो जब आप घर कलीसिया में मिलते हो, अगर आपने टाइम रखा है, सोचो 7 बजे, तो शायद कोई जल्दी आएगा, शायद कोई देरी से आएगा। अब घर कलीसिया में हम एनकरेज करते हैं कि आप भोजन साथ में करो, या फिर कुछ स्नैक्स साथ में करो, या कुछ सूप साथ में बनाओ, या फिर कुछ भी, ओके, एनीथिंग, जस्ट बी फ्री। भोजन हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भोजन अगर आप करोगे तो ज्यादा समय आप साथ में बिताओगे। स्नैक्स आप खाओगे तो चुप करके खत्म हो जाएगा, ओके, तो बात करने के लिए नहीं मिलेगा और फिर आप लोग जाने के लिए रेडी हो जाओगे। तो भोजन अगर आप रखते हो तो ज्यादा समय एक दूसरे के साथ बिता सकते हो। हालेलुया। The point is not in sitting together and listening. The point is sitting together and becoming one. Hallelujah. Becoming one by sharing. Right? So, इसलिए भोजन जरूरी है। Okay? Coming back to meal every time. Coming back to bread. Breaking of bread. Okay? तो जब भी हम साथ आए खाने के लिए, एक दूसरे का इंतजार करें। That is why the reason we don't have the meal right at the start when we begin. Okay? Exactly शुरू में हमने रोटी नहीं तोड़ा, right? क्योंकि हमने वेट किया कि और लोग आए। Okay? Actually, when the time is 5:30, we should be here at 5:30. Because if we come at 5:30, then we can flex. We can make our work flexible, right? But we wait for everyone to come and then partake of the bread. Why? Because we can share this joy together of being one family, right? When we are partaking in the breaking of bread, we are dining with Christ. क्योंकि हम यीशु के परिवार है, यीशु के परिवार होने के यीशु के परिवार के सदस्य होने के नाते हम उस उत्साह से एक रोटी में भाग लेते हैं। हालेलुया। तो रोटी तोड़ते समय, जैसे मत्ती 18:20 में लिखा गया है, जहां 2 या 3 इकट्ठे मेरे नाम से, मैं उनके बीच हूं। हालेलुया। 1 कुरिन्थियों 11 में लिखा गया है, और प्रभु यीशु ने उसी रात को, when he was to be betrayed, he took the bread and then he gave thanks to God, he broke it and he said, take, eat, this is my body, right? तो जीसस हिमसेल्फ, यीशु ने खुद इस रोटी को तोड़ा था हमारे लिए। अब उसके जस्ट क्रूस पर जाने से पहले उसने ये किया। तो मतलब रोटी तोड़ना जरूरी है कि क्रूस पर जाने से पहले भी यीशु ने रोटी और प्याले में भाग लिया अपने शिष्यों के साथ, और उनको बोला ये निरंतर करते रहो, ये रोटी मैं तोड़ रहा हूं, ये मेरा शरीर है। बस क्रूस में जाने से पहले वो कह रहे हैं, ये मेरा शरीर मैं तोड़ रहा हूं तुम्हारे लिए, और ये याद में तुम हमेशा ये करते रहो। क्या? कि हम यीशु के साथ होने के वजह से ये रोटी तोड़ रहे, उसके साथ होने का आनंद में हम ये रोटी तोड़ रहे कि यीशु ने अपना शरीर तोड़ा, जिसकी वजह से हम सब परिपूर्ण हो गए हैं, चंगे हो गए हैं। उसके पकौड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। इस आनंद में हम सब साथ में मिलकर इस आनंद में शरीक होते हैं जब हम ये रोटी तोड़ते हैं। तो henceforth when we break the bread, we will break the bread with the joy that Jesus has done all that he has done for all of us, not just for me but for all of us, and that joy we will share with each other, that bread which we are breaking together and we are having. Hallelujah. तो रोटी तोड़ते समय we will, हम आनंदित हृदय से उसमें भाग लेंगे कि हम सब यीशु के परिवार के सदस्य हैं। हालेलुया। When we partake again, जब हम शरीक होते हैं, we will get ready for the bread. जब हम we get ready, come, yeah, the choir can come front.
जब हम रोटी में शरीक होंगे इस समय, याद करेंगे व्हाट, दैट हम सब यीशु के परिवार के सदस्य हैं। यीशु ने ये सब कुछ हमारे लिए किया हुआ है। हालेलुया। और इसमें हम सब शामिल है, यानी कि इसमें यीशु के शरीर का जो तोड़ना, जिसकी वजह से चंगाई उपलब्ध है, आशीष उपलब्ध है, ये सब कुछ उपलब्ध है, ये आनंद में हम सब शरीक है। So not only I think about me getting that blessing, but all of us are saying yes, it is for all of us, and we all are partakers in this. Hallelujah. So when we partake in the bread, we are partake with joy. Hallelujah. That we are all part of Jesus' family, and we are all breaking the same bread that was broken. That's the body of Jesus for each one of us. Hallelujah. Hallelujah. All understood? Fine. Come, we'll break the bread together. God, we thank you, Lord, that you have broken your body, Lord, for each one of us. And thank you that you have done this for your church, Lord. और हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, ये रोटी आपने तोड़ा है और हम सबको कहा है कि मेरे याद में ये करते रहो। हम धन्यवाद करते हैं कि आपके शरीर के तोड़े जाने की वजह से हम सब चंगे हो गए हैं। आपने वो सब कोड़े खाए, आपने वो दंड लिया, आपने वो काम पूरा किया प्रभु, सारी उपलब्धि क्रूज पर हमारे लिए दे दिया प्रभु, क्योंकि हम आपके परिवार के सदस्य हैं प्रभु। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। और ये इसमें इस रोटी में भाग लेकर हम सब इस आनंद में खुशी से भाग लेंगे कि हम सब परिपूर्ण है। वी आर ऑल मेड होल, and with this faith we are partaking in this bread. Thank you, Jesus. Thank you, Father. नाम में है मुक्ति, इस नाम में है शक्ति, इस नाम में है शांति। Only both this, one from one side, the other side you can go. Only the bread, wine later on. Okay. जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में Break it, है man. शांति, देखा वो नाम चमत्कार है। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु Enough, I think, no? जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 बीमारी से, गरीबी से, शाप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, शाप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 Hallelujah. Hallelujah. We all took part in the bread, right? हम सब ने इस रोटी में भाग लिया है, इसलिए हम सब विश्वास करते हैं कि हम परिपूर्ण हैं, हमारा शरीर चंगा हो गया है। हम कहेंगे सब साथ में,
हमारा शरीर चंगा हो गया है, हमारा शरीर चंगा हो गया है, एंड वी आर रिस्टोर्ड। हालेलुया। हम फिर से स्थापित किए गए हैं, हम सामर्थ्यशील बनाए गए हैं, हम ताकतवर बनाए गए हैं। हालेलुया। हर कमजोरी निकल गई है, क्योंकि हम यीशु के परिवार के सदस्य हैं। उसका रोटी तोड़ा गया है, और क्यों? ताकि मैं परिपूर्ण बन जाऊं। और ये रोटी में भाग लेकर मैंने ये अंगीकार किया कि इसमें मैं शरीक हूँ, इस ब्लेसिंग में मैं शरीक हूँ। हालेलुया। तो we've all partaken of the bread, we are all made whole. Hallelujah. It's a joy. खुशी है कि इसमें हम साथ में हमने भाग लिया है। Hallelujah. I will need the stand. No, don't go. Just be behind. तो हम सब ने रोटी में भाग लिया। तो रोटी में हमने जो भाग लिया, हमने उसकी मृत्यु को याद किया। यीशु ने क्रूस पर जो है अपना जान दिया, अपने शरीर को तोड़ा ताकि हमारा शरीर परिपूर्ण हो। और इस आशीष में हम सब शामिल हैं, और इस आनंद में हम सब ने एक ही रोटी में भाग लिया था। राइट। हालेलुया। अब आते हैं प्याले में। उसके बाद लिखा गया है कुरिन्थियों 11 में, उसके बाद उसी तरह से उसने प्याला लिया भोजन के बाद। कब? भोजन के बाद। 1 Corinthians 11:25 it says, and he took and he in the same manner he took the cup after supper. So first you take part in the bread and cup. आपको क्या करना है जब आप मिलते हो घर कलीसिया में स्टार्टिंग में? तो वेट फॉर एवरीवन टू कम। इंतजार करो कि सब लोग आ जाए। ओके, इंतजार करो कि सब लोग आए। उसके बाद आप रोटी तोड़ो, क्योंकि हम एक दूसरे को याद दिला रहे हैं कि हम मिल रहे हैं यीशु के परिवार के सदस्य होने के नाते। हालेलुया। क्योंकि यीशु के परिवार के सदस्य होने के नाते हम सब परिपूर्ण है, और इस आनंद में हम पहले रोटी को तोड़ेंगे घर पर। हालेलुया। तो रोटी को तोड़कर हम आनंदित होंगे एक साथ स्टार्टिंग में। ओके, आफ्टर वेटिंग फॉर ईच अदर एज अ वर्ड सेज, राइट? सो वी ब्रेक द ब्रेड। आफ्टर दैट यू कैन हैव योर मील। उसके बाद अपना भोजन खा सकते हो जो आपने घर पर बनाया हो। अब भोजन के बारे में क्या? भोजन या तो आप साथ में मिलकर पका सकते हो, या फिर आप में से कोई एक अगर कुछ बनाकर अगर ड्रॉप कर जाना है वो कर सकते हो। हालेलुया। योर फैमिली, राइट? रिमेंबर, योर फैमिली। सो व्हेन यू आर मीटिंग इन अ हाउस चर्च, just be free. Somebody is going to make chapatis and make chapatis and drop the chapatis and go. You know, just be free. Just the point is that you are making a meal, arranging a meal to eat together. So you all can put in whatever you all can. Hallelujah. Or otherwise meet in the house. One bring the chicken, one bring the bhaji. You know, have an agape when maybe at home. हर एक अपना अपना भोजन घर से भी लाकर एक साथ शरीक हो सकते हैं। वहां पर भी, घर पे भी कर सकते हैं, क्योंकि सब लोग घर पे खाना खाते हैं, तो हम वहां पर खाएंगे उस दिन। हालेलुया। मेक सेंस? हालेलुया। अगेन द पॉइंट इज मीटिंग टुगेदर, स्पेंडिंग मोर टाइम टुगेदर, और ज्यादा समय एक दूसरे के साथ बिता रहे हैं ताकि एक दूसरे के साथ हमारी कनेक्शंस स्ट्रांग हो। राइट? और अदर वर्ड आई कैन यूज, राइट? हमारा जोड़ और मजबूत बने एक दूसरे के साथ। जितना हम मिलेंगे, बात करेंगे, साथ में जो है समय बिताकर जो है खाना एक साथ खाएंगे, बहुत सारे बातें हो जाएंगी, बहुत सारे बातें बाहर आएंगी। ओके, हम एक होना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। सो देन यू कैन हैव द मील। ओके, अब जैसे मैंने कहा, व्हेन यू आर हैविंग मील, जब हम खाना खाते हैं तो बहुत सारी चीजें हम बोलते हैं, राइट? इसलिए मील, have your meal after the breaking the bread, because then lot of things you all will share. Okay, you all will speak about. Now uske baad you can have your cup. Jesus took the cup, okay, in his hand after the meal, and he said, this is the cup of the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it, remember me. So what we have to remember, में क्या याद करना है कि वो नया वाचा जो उसके लहू में बनाया गया था, उसके लहू में कौन सा वाचा बनाया गया था
कि उसके लहू में वो सामर्थ है हमारे सारे पापों को धोने के लिए। हालेलुया। तो हम प्याले में शरीक होने के टाइम पर हम पापों की क्षमा नहीं मांगते हैं, राइट? हर बार जब हम पाप करते हैं उसी समय क्षमा मांगो। हालेलुया। जैसे मैं हमेशा छोटे बच्चों को भी बोलती रहती थी कि जब भी तुम मत कुछ करो उसी समय ही सॉरी बोलो, खत्म करो उधर का उधर ही। हालेलुया। वैसे ही हम सबको भी करना है। अगर कुछ हो गया तो वही के वही सॉरी बोल के खत्म करो। प्रभु का वचन कहता है कि हमारे जीवन में हम जो भी करते हैं, जो भी सोचते हैं, सब कुछ रिकॉर्ड किया गया है स्वर्ग में, धरती पे नहीं। हालेलुया। धरती पे सारे रिकॉर्ड जलाते हैं, तो धरती पे रिकॉर्ड नहीं है, स्वर्ग में रिकॉर्ड है। हम जो अच्छा करते हैं, जो बुरा करते हैं, अच्छा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, सब रिकॉर्ड है, राइट? बट जो बुरा सोचते हैं या बुरा करते हैं, जब हम दिल से उस क्षमा मांगते हैं तो वो हमारे रिकॉर्ड से निकल जाता है। तो क्या बचा? जो अच्छा है, राइट? हालेलुया। हालेलुया। How many of you remember that Goodometer skit? कितनों को याद है? Remember we had the Goodometer skit first anniversary. The children had all done it. Priya, and who was there? Joshua, Irvin, remember? Rachel. In that skit we had shown how the good things are there all on your record, and the bad things which you have repented is washed, which you have not repented is shown, right? Because that's what the word says, that when we repent, when we have asked for forgiveness, it is removed off from our record. प्रभु को उसको याद भी नहीं रखते हैं, right? The Lord doesn't even remember them. Our lives have to be 24/7 in that position. हमारा जीवन 24 घंटे उस स्थान पे होना चाहिए कि हमारा रिकॉर्ड स्वर्ग में हमेशा साफ है। तब हम कह सकते हैं कि हम कभी भी जाने के लिए तैयार है। हालेलुया। नाउ व्हेन वी ब्रेक द ब्रेड वी रिमेंबर हिज डेथ, राइट? उसके मृत्यु को याद करते हैं रोटी तोड़ते समय, क्योंकि उसका शरीर तोड़ा गया था हमारे लिए, तो उसके मृत्यु को दर्शाता है। जब हम प्याले में भाग लेते हैं तो उसके विजय को दर्शाता है, उसके लहू को दर्शाता है, जिससे हमको विजय मिला है। उसके लहू से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। हमारे सारे पाप धुलने के वजह से हम जो पाप के जकड़ से मुक्त होते हैं, राइट? वी आर फ्रीड फ्रॉम द डेथ। Because we are freed from the death, we will be raised. Hallelujah. Anyone who is not freed from death, how can he be raised? अगर कोई मृत्यु में ही है तो उसका पुनरुत्थान कैसे होगा? अनंत काल का पुनरुत्थान। Okay? So we have to constantly be cleanse ourselves, to always keep ourselves ready. हमेशा खुद को तैयार रखो। कुछ भी गलती हुई क्षमा मांगो, साफ रखो अपने आप को। यीशु के लहू में वो ताकत है, तो उसने अपना लहू बहाया हमारे लिए, एक नया वाचा बनाया कि हम मृत्यु से पार हो गए हैं और उसके पुनरुत्थान में अब हम भी शामिल होंगे। उसका पुनरुत्थान हुआ जैसा, वैसा ही हमारा भी पुनरुत्थान एक दिन होगा। हालेलुया। 1 कोरिन्थियों 15:21-22 says, For since man came death, एक व्यक्ति से मृत्यु आया, वैसे ही एक व्यक्ति के द्वारा पुनरुत्थान भी आया। आदम से सभी मर गए, वैसे ही मसीहा के द्वारा अब सभी जीते हैं। Acts 2:24 says, परमेश्वर ने यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया और उसको हर दर्द और मृत्यु के दर्द से भी छुड़ा दिया, क्योंकि मृत्यु उसको पकड़ नहीं पाई। रोमियो 8:18 कहता है, लेकिन उसकी आत्मा जिसने जो मृतकों में से जी उठा, जो है यीशु के बारे में, वो तुम्हारे अंदर अब जीता है। वो जिसने यीशु मसीह को मृतकों में से उठाया, वो आपके शरीर में भी एक वो नया जीवन डाल देगा, उसके आत्मा के द्वारा जो तुम्हारे अंदर निवास करता है। यानी कि वो कह रहा है कि पवित्र आत्मा जो तुम्हारे अंदर निवास करता है, वो साक्षी है
कि जैसे यीशु मसीह मृत्यु से बाहर आया, क्योंकि मृत्यु उसको जो पकड़ नहीं पाया, वैसे ही क्योंकि आप हमेशा यीशु के लहू से शुद्ध हो रहे हो, मृत्यु आपको पकड़ नहीं पा रही है। इसका मतलब अगर आप क्षमा नहीं मांगते हो यीशु के लहू से, मृत्यु आपको पकड़ रही है, राइट। लेकिन अगर आपने क्षमा मांगा, लहू से खुद को हमेशा साफ रखा, यू आर ऑटोमेटिकली होली, यू आर आउट ऑफ द क्लचेस ऑफ डेथ। अपने आप को आपने हमेशा मृत्यु से जो है अलग रखा है। मृत्यु आपको पकड़ नहीं सकती है, क्योंकि आप पुनरुत्थान आपके पास है। क्योंकि मृत्यु आपके पास नहीं है तो पुनरुत्थान आपके पास है। हालेलुया। और पुनरुत्थान जो आपके पास है उसके वजह से हम जानते हैं यीशु कभी भी आएंगे, हमारा पुनरुत्थान होगा, चाहे हम जिए शरीर में या मरे। हालेलुया, हालेलुया। तो इट्स अ जॉय टू पार्टेक इन द ब्लड, इन द कप विच represents the new covenant in his blood। एक नया वाचा जो उसके लहू में है, उसमें हम शरीक होते हैं, ये अंगीकार के साथ, ये खुशी के साथ कि हमारे सारे पाप धुल गए हैं और उसके नए वाचे के अनुसार हमको पाप के जकड़ से छुड़ाया गया है। हम पाप के जकड़ में नहीं है, हमारा पुनरुत्थान होने वाला है जिसकी वजह से, क्योंकि हम तैयार है और यीशु कभी भी आएंगे तो हम जाएंगे। इसलिए घर कलीसिया में जब हम खत्म करते हैं, जब रोटी में प्याले में भाग लेते हैं, हम एक दूसरे को याद दिला रहे हैं कि हम सबका पुनरुत्थान होने वाला है। ये खुशी की बात है कि हम सब शुद्ध है, पवित्र है, पाप के जकड़ से अलग है और हमारा पुनरुत्थान होगा। हालेलुया। जब यीशु आएंगे तो पलक झपकता उतना ही समय है और हम निकल जाएंगे यीशु के साथ बादलों पर। हालेलुया। और बादलों से स्वर्ग में, हमारे घर में। हालेलुया। तो ये आनंद की बात है कि यीशु के लहू में, ये नए वाचा में हम सब शरीक है और हम सब उसके पुनरुत्थान के आनंद में शामिल है। तो हम इस प्याले में भाग लेंगे एक साथ में, आनंद के साथ। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि ये प्याला प्रभु आप ने जो तैयार किया है प्रभु, और आपने कहा है कि आपकी याद में हम ये करें। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने जो किया, आपके पुनरुत्थान की वजह से पिता परमेश्वर हमको ये आशा मिला है। आपने जो अपना लहू बहाया उससे हमारे पास सारे पाप शुद्ध हो गए हैं, साफ हो गए हैं, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि हम तैयार हैं पुनरुत्थान के लिए। प्रभु धन्यवाद करते हैं, सारा गौरव, महिमा और स्तुति हम आप ही की करते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। I am ready. I am ready. By the blood of the Lamb. By the blood of the Lamb. I am ready. I am ready. And I know I am. And I know I am. I am redeemed by the blood of the Lamb. Saved from sin, and I know I am. All my sins are taken away. Praise the Lord. We are redeemed. We are redeemed By the blood of the Lamb. by the blood of the Lamb. We are redeemed. We are redeemed. We know we are. And we know we are redeemed. Amen. एक दूसरे को देखकर गाकर इसमें भाग लो। हम सबको छुड़ाया गया है, हम सबको मुक्ति मिला है। Taken away, praise the Lord. मुझे मुक्ति मिल गई, मुझे मुक्ति मिल गई यीशु के लहू से। मुझे मुक्ति मिल गई और मैं जानता हूँ मुझे मुक्ति मिल गई यीशु के लहू से। पापों से हम बच गया, मेरे सारे पाप धुल गए। यीशु की जय। I am ready, I am ready, by the blood of the Lamb, by the blood Amen. of the Lamb. I am ready, I am ready,
And I know I am redeemed by the blood of the Lamb. Sin from sin, and I know I am. All my sins are taken away. Praise the Lord. All my sins are taken away. Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया। हम तैयार है जाने के लिए? कितने उत्सुक है जाने के लिए? आज यीशु आए तो जाने के लिए कितने रेडी हैं? कितने रेडी है? कितने रेडी है? कितने रेडी? अपने आंखें बंद करो। कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है? इसीलिए हमारा विवेक साफ रखना है। हालेलुया। अगर हमारा विवेक साफ है तो कभी भी कोई भी पूछेगा, आर यू रेडी? यस, आई एम रेडी। हालेलुया। वी नीड टू कीप आवर कॉन्शियंस क्लीन, वॉश्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस, ऑलवेज रेडी। अगर आपने क्षमा मांगा है हमेशा, जब आप गलती करते हो तो आप धुल गए हो। डोंट लेट द डेविल रिमाइंड यू अबाउट व्हाट यू डिड। टेल हिम दैट माय सिंस आर वॉश्ड अवे। हालेलुया। Once it's washed, it's washed. God doesn't remember. Who is the devil? Who is anybody else? Hallelujah. Right? So we are victorious. हम विजयी है प्रभु में, इस विजयी में जी रहे हैं साथ में। हालेलुया। किसी को अगर कोई गलत फहमी है तो उसको समझाओ ये कि हम सब विजयी है, क्योंकि हम सब यीशु मसीह के परिवार के सदस्य हैं। हम सब विजयी है। हालेलुया, हालेलुया। तो जैसे मैंने कहा, भोजन का समय आप फ्लेक्सिबल रख सकते हो, चाहे आप अगापे की तरह रख सकते हो, चाहे तो सब मिलकर खाना एक साथ पका सकते हो। ओके, कभी इसके घर में कभी उसके घर में मिल सकते हो, जरूरी नहीं एक ही घर में मिले, कभी चाहिए तो दूसरे के घर में मिलो। हालेलुया। क्योंकि जैसे जैसे आपका घर कलीसिया बड़ा होगा वो दो भाग में वापस बटेगा, क्योंकि बड़ा अगर संख्या में अगर आप मिल रहे हो तो सभी शेयर नहीं कर सकते। अगेन कम्स टू द सेम थिंग। सो अगेन अगर बड़ी हो गई तो वापस उसको आधा बना सकते हैं, आधा एक और घर में मिल सकता है, आधा एक और घर में मिल सकता है। हालेलुया। तो अभी आएगा कौन? सिर्फ हम नहीं, हम सब है ये। जैसे हम एक एक ग्रुप में हमने बनाया ना, एक एक घर कलीसिया, राइट? तो आपको किसको बुलाना है? जैसे कॉर्नेलियस ने किया, he called his friends, he called his relatives, ओके? तो आपके पड़ोसी, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके कोई भी आपके एक्वेंटेंस है, जो आपका एक्वेंटेंस है वो मेरा एक्वेंटेंस नहीं है, राइट? तो मैं उनको बुलाऊंगी जो मैं जानती हूँ, आप उनको बुलाओ जो आप जानते हो। तो क्या कलीसिया बढ़ेगी? घर कलीसिया बढ़ेगी पहले। हालेलुया। घर कलीसिया बढ़ेगी। यू नो, अगर आप बाहर किसी से बात करते हो और अगर आप बोलते हो कलीसिया आओ, तो दो बार सोचता है। अगर आप उनको अपने घर में बुलाओगे भोजन के लिए तो वो आएगा। हालेलुया। तो घर पे हमको बुलाना है, ये सब नहीं कहना है अरे कलीसिया में आओ। यू नो, मेनी टाइम्स हम क्या करते थे कि हम एवेंजलाइज करते तो कहते कलीसिया में आओ। हम हमारी घर उदाहरण होने चाहिए, हमारा ये परिवार उदाहरण होना चाहिए, हमारा जीवन उदाहरण होना चाहिए। हालेलुया। तो रिश्तेदार भी आएंगे, पड़ोसी भी आएंगे, क्यों? देखेंगे आप अलग हो। हालेलुया। वो होना चाहिए। इसी तरह से शुरुआत की कलीसिया बढ़ी, क्योंकि वो खुद उदाहरण बने, एक परिवार बने, और इसीलिए और लोग फिर ज्वाइन होने की चाह रखेंगे। हालेलुया। कि ये अलग है लोग, और ये परिवार सिर्फ हमारे लिए नहीं बनी है, उद्धार सिर्फ हमारे लिए नहीं है, पूरे दुनिया के लोगों के लिए है। लेकिन जब हमको उसका पूरा आनंद का एहसास होगा तो हम दूसरों के साथ उसी उत्साह के साथ शेयर कर पाएंगे। सिर्फ संदेश देना नहीं, लेकिन मसीही जीवन क्या होता है उनको दिखाना, और ये उनको समझाना कि आप भी इसमें शरीक हो सकते हो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने दुनिया के लिए योजना बनाई,
सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, सिर्फ कलीसिया के अंदर के लिए में ही काम करने के लिए नहीं, दुनिया भर में काम करने के लिए, सुसमाचार के द्वारा जो मसीही लोगों के द्वारा दिखाया जाएगा, बताया जाएगा, प्रचार किया जाएगा। वो सिर्फ मुंह से नहीं, सिर्फ प्रचार से नहीं, लेकिन हमारे जीवन से भी, हमारे टेस्टिमनी से भी, हमारी गवाही से। हालेलुया। तो कॉर्नेलियस के घर पे जैसे एक्ट्स 10 में कॉर्नेलियस ने किया, उसने दोस्तों को बुलाया, रिश्तेदारों को बुलाया। तो घर कलीसिया में आप अपने दोस्तों को बुला सकते हो, रिश्तेदारों को बुला सकते हो। इट इज ओपन, इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड, सिर्फ अबंडेंट ब्लेसिंग्स के मेंबर्स के लिए सीमित नहीं है। आप किसी को भी, दूसरों को भी, जिसको आप यीशु के बारे में बोल रहे हो, मैंने कहा ना, पूरे हफ्ते में काम की जगह पे, कॉलेज में, स्कूल में, कई भाजी के मार्केट में, किसके साथ आपकी बातचीत हमेशा होती है, आपका तालमेल अच्छा है, उनको आपके घर कलीसिया में बुलाओ और फिर उनको बोलो कि आप भी यीशु के परिवार में शरीक हो सकते हो, क्योंकि फिर आप उनको समझा सकते हैं कि यीशु के परिवार का इनविटेशन पूरी दुनिया के लोगों के लिए है। हालेलुया। इस तरह से यीशु मसीह की कलीसिया, यीशु मसीह का राज्य धरती में भी बढ़ेगा। हालेलुया। तो अपने घर पे बुलाओ उनको, अपने घर कलीसिया में, और यीशु का प्रचार आपका जीवन के द्वारा होने दो उनके लिए। हालेलुया। अब घर कलीसिया में एक ऐसा जो है, अभी के लिए एक ऐसा एल्डर नहीं है। द वर्ड ऑफ गॉड सेज ऑल आर को-वर्कर्स, सभी को-वर्कर्स सहकर्मी है, सभी सहकर्मी है, क्योंकि मेरा गिफ्टिंग मैं लेके आती हूँ, मेरे गुण मैं लेके आती हूँ, उसका गुण वो लेके आएगी। मेरे पौधे मेरे घर पे इतना अच्छा नहीं कर रहे, मैं दिशा को बुलाऊंगी। हालेलुया। तो जल्दी से जान लो एक दूसरे का गुण क्या क्या है। हालेलुया। One day we'll have that also. We'll tell all our what we are good in. So we'll help. See, खाना पकाने में अच्छा है। We'll help each other out. कोई खाना पकाने में उतना अच्छा नहीं है, अकेला घर पे अभी पता नहीं क्या करने का, जैसा फ्री है क्या, आना। That is family. Hallelujah. That is family. I need something in my house, okay, then I can ask somebody. You need something in your house, you can ask somebody. Hallelujah. Yeah. We have lot of members in this family. एक बिजी है, एक काम पे है, एक कॉलेज में है, चौथे को फोन करो। Hallelujah. Right? If there is something in the house to be done, if there is something in the house to be done, Mama will tell you. If you say you are busy, Mama will tell दक्ष, राइट। सो अगर एक बिजी है, नेक्स्ट को फोन करो। हमारा ये परिवार बहुत बड़ा है। हालेलुया। हमने से हालेलुया, रेज अ हैंड्स एंड से हालेलुया। किसने, कौन कौन इसमें सहभागी होंगे? हालेलुया। मेरा हाथ ऊपर ही जा रहा है, इसलिए उतना ही जा रहा है। हालेलुया। एक्साइटेड। दिस इज हाउ family has to be. The family of God has to be. And we will work on this henceforth, being a family. Happy? Happy? It will take some time to digest. बहुत टाइम के बाद बिरयानी खाएगा तो थोड़ा डाइजेस्ट होने के लिए समय लगता है। ओके, तो विल टेक इट स्लो, हो जाएगा डाइजेस्ट, स्लोली आदत हो जाएगी। ओके, लेकिन जो भी हमने कहा आज, हमने सबने समझा ना, तो उसमें हम अमल करना शुरू करेंगे। विल स्टार्ट अप्लाइंग इट। ओके, जस्ट रिमेंबर फॉर नाउ वी आर ऑल वन फैमिली। Now in the family, are children involved? Yes. Are children involved? Are children involved? Yes. That's why instructions are given for children also. Obey your parents. Children also are getting instructions. Children are not less spared. Children also are given instructions. Obey your parents, right? It will be well with you. You will live a long life, right? छोटे बच्चों के लिए भी है। कहाँ गए दोनों? Okay. What's the time? 7:10. I'm weighing my time.
ओके, सो यू हैड योर मील टाइम. आपने खाने का समय में बहुत से सारे चर्चे किए आपस में, ये चीज वो चीज, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, खुलेंगी, बहुत सारे मुद्दे उभरेंगे, इसके बारे में उसके बारे में बहुत सारी चीजें आएंगी. अब एंड में, ओके, दैट इज आफ्टर योर मील, मोस्टली आफ्टर द मील, वो जो मुद्दा जो सबसे महत्वपूर्ण था, जिसको आपको एड्रेस करना है, उस मुद्दे पर सिंपोजियम होगा. सिंपोजियम मीन्स यू विल टॉक ऑन दैट टू मेक इट क्लियर अकॉर्डिंग टू गॉड्स वर्ड. हालेलुया. सो वन conversation or two conversations which are important to discuss about it. Remember, Paul wrote in his letters, I heard this, so this you should do, this should be done, right? पौलुस ने पत्रिकाओं में लिखा, मैंने सुना है कि ऐसा 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 है, तो आपको ऐसा ऐसा करना है. क्यों पत्रिका लिखा पौलुस ने? जब वो नहीं जा सकता था तो उसने पत्रिका लिखी. क्यों? इट इज इंपॉर्टेंट टू एड्रेस इश्यूज. जो भी मुद्दे हैं उसको एड्रेस करना जरूरी है. क्यों एड्रेस करना जरूरी है? सो दैट इट इज सॉल्व, सो दैट द नेक्स्ट टाइम वी हैव ऑल लर्नड व्हाट टू डू व्हेन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन अराइजेस इन एनीवेयर एल्स. हालेलुया. इसलिए अभी मुद्दों को कार्पेट के नीचे नहीं डालना है, सुलझाना है वंस एंड फॉर ऑल अकॉर्डिंग टू गॉड्स वर्ड. हालेलुया. सो दैट्स कॉल्ड अ सिंपोजियम. मीन्स वन topic you will take on the discussion, something, or something that is, if nothing is there, everything is going fine, hallelujah, then take something which needs to be addressed. Then अगर कुछ नहीं है आपस में, मतलब कोई सीरियस मुद्दा है नहीं, तो कुछ ऐसा ले लो जो सबके लिए सीखना जरूरी है या सीखना बाकी है, या एक चीज का जो अभी भी कंफ्यूजन है, तो आप उनको वचन से स्पष्टता कर रहे हो. हालेलुया. Paul taught in this way and he went on explaining and teaching, and that is a whole night he spent. Hallelujah. Hallelujah. यहाँ पर हम समय देखते हैं, वहां पर पौलुस ने समय नहीं देखा. ओके, सो एक मुद्दे के ऊपर, so that's why there's no particular thing, okay, but if there is nothing, if everything is good, hallelujah, everything is going fine, then we'll take a topic which has to be addressed, and we will address it according to God's word, so that it is solved, so that everybody has learned. That is how all are maturing together. सभी और ज्यादा परिपक्व होते जा रहे हैं इस तरह से, क्योंकि सब लोग मुद्दों के बारे में सीख रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं, हाँ इसमें ऐसा करना है प्रभु, हाँ इसमें वचन इस तरह से करना बोला है, तो हम सब इस तरह से प्रभु में परिपक्व हो रहे हैं. हालेलुया. सभी मैच्योर हो रहे हैं, सभी सीख रहे हैं. हमारा पूरा परिवार फिर परिपक्व हो जाएगा, कोई पीछे नहीं रहेगा. हालेलुया. हालेलुया. इस तरह से we'll all learn. Nobody will be left behind. Oh, thank you, Jesus. So if you have a birthday, when you are meeting in the house church, somebody's birthday is there, celebrate together. Someone's anniversary is there, celebrate together. Watch a movie. Watch a movie together. Christian movie. वर्ल्डली मूवीज यू डोंट लर्न एनीथिंग, कुछ सीखने को नहीं मिलता है. क्रिश्चियन मूवी देखो, इतने सारे क्रिश्चियन मूवीज है, आपको चाहिए तो हमसे ले लो, टेक इट फ्रॉम अस, वी गॉट लॉट्स. ओके, तो क्रिश्चियन मूवीज वॉच टुगेदर, पिक्चर देखो साथ में, कभी कभी अगर T20 का मैच है, मैच साथ में देखो. हर चीज वो करो जो आपको और क्लोज लेकर आएगा. साथ में आप चिल्ला रहे हो, ये गोल हो गया, फुटबॉल मैच साथ में देखो. हालेलुया. Do everything that you can bring you all together. That will make you all one. Do it. Be free. That is family. Hallelujah. So you're not only spiritual, we have to be. Enjoy life. You don't have to just be serious, Jesus went for wedding, right? He was not all the time teaching. He also went for wedding. So he also went. So you also enjoy, but enjoy in the right way. लेकिन enjoyment भी सही से, right? Not wayward. Enjoyment भी करो साथ में.
जब तक कि कोई सीमा पार नहीं कर देते. ओके, एंजॉय. And we'll come last now to 1 Corinthians chapter 11, verse 17. I should have brought my pen drive. Okay, 1 Corinthians chapter 11, verse 17, right up to chapter 14, verse 40. You can read at home. घर पर आप इसको ध्यान से slowly पढ़ो. 1 Corinthians chapter 11, verse 17, up to chapter 14, verse 40. You read this at home. Okay, I'll give you a थोड़ा सा overview मैं आपको दे दूंगी उसका. 1 Corinthians chapter 11 verse 17 में लिखा गया है, जब तुम एक साथ मिलो. क्या लिखा है साथ में? जब तुम एक साथ मिलो. ओके, उसके बाद सारे वचन है, चैप्टर है. एंड चैप्टर 14 verse 26 it says, जब तुम एक साथ मिलो. Hallelujah. So 11:17 and 14:26 says, whenever you come together, what you have to do is all in between these two verses. So 11:17 and 14:26 के बीच में जो भी लिखा है, जब आप मिलते हो क्या करना है, उसमें अंदर लिखा है, in between. Hallelujah. So beautiful, no? 11:17 to 34, verse 34, it talks about reminding them what they already know. We all know quite a lot already. So what he says, remind them of what they know already. याद दिलाओ जो वो ऑलरेडी जानते हैं. मतलब वो जानते हैं लेकिन कर नहीं रहे, तो उनको याद दिलाओ वो सारी बातें जो ऑलरेडी जानते हैं. हालेलुया. तो हम क्या कर रहे हैं घर कलीसिया में मिलकर? एक दूसरे को याद दिला रहे, अरे वचन में ये लिखा है ना, तो इसका मतलब इसका हल ये है. हालेलुया. वचन में ये लिखा है, इसलिए उठो, खड़े हो जाओ, दौड़ो. हालेलुया. तो हम जानते हैं वचन, लेकिन हम एक दूसरे को याद दिला रहे जो हम ऑलरेडी जानते हैं. हालेलुया. सो 11:17 to 34 you will find that reminding already what the things you know. Okay, then chapter 12 verse 1 up to chapter 13 verse 13, if you read that portion, okay, it all speaks about your relationships. 12:1 to 13:13 ये बात करता है रिश्तों के बारे में, आपसी बातों के बारे में, आपसी रिश्तों के बारे में, आपसी बोल जो हम करते हैं, जो बोली हम करते हैं, जो हम साथ में जो करते हैं, इंटरैक्शंस, वो सब इस सेक्शन में दिया हुआ है. तो जब आप पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है इस तरह से करो, एनकरेज करो, प्रोवोक करो, करेक्ट करो. यू नो, यू विल फाइंड ऑल दिस इन दिस. ओके, इट स्पीक्स अबाउट कैसे हमको इंटरैक्ट करना है, जो संपर्क एक दूसरे के साथ कैसे रखना है, इसमें आपको मिल जाएगा. ओके, अब साथ ही साथ वेरी इंपॉर्टेंट 11:18 में अगर आप जो पढ़ते हो, पौलुस जिक्र करता है कि कैसे समूह में डिविजन्स है. इसका मतलब उस समय में डिविजन्स थे, ऐसा नहीं है कि अभी डिविजन्स है तो अब नहीं था, तभी भी डिविजन्स थे. तो पौलुस ने उसको भी एड्रेस किया कि देयर इज डिवीजन अमंग यू. तुम्हारे बीच में क्या कहते हैं डिवीजन? दरारें हैं. तो पौलुस कहता है दरारों को ठीक करवाओ. तो हमको जब हम मिलते हैं घर कलीसिया में, दरारों को भी ठीक करवाना है. हालेलुया. कुछ भी है मन में, दिल में, फिनिश कर लो. हालेलुया. सारे दरारें निकाल बाहर करनी है. और क्या क्या करना है? चैप्टर 14 वर्स 1 to 40 अगर आप जो पढ़ते हो तो इसमें प्रोत्साहन है कि किस तरह हम सबको एक दूसरे को बढ़ाना है. हाउ वी हैव टू बिल्ड ईच अदर. ओके, एंड व्हेन यू मीट एवरीवन कैन ब्रिंग अ साम, अ हिम, अ स्पिरिचुअल सॉन्ग. सब लोग एक गीत ला सकते हैं. ये गीत नहीं जो हम यहाँ गाते हैं.
तुम अपना गीत लेकर आओ, चाहे वो एक लाइन का हो। तुम्हारी गवाही क्या हुआ, आप एक लाइन में बोलने के बजाय गाओ, सुर को छोड़ दो। हालेलुया। आप गवाही दे रहे हो, वो सुर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। हालेलुया, आमेन। दैट टेस्टिमनी, जब आपकी गवाही होती है ना, वो आपके अंदर से उबलती है ना, आपके अंदर से आता है, तो दैट सॉन्ग ऑल्सो विल कम आउट इन 1 लाइन, 2 लाइन, 1 पैरा, जो भी। हालेलुया। The musicians, those who are gifted, you can write your own paragraph as a testimony what happened in the week. Sing it instead of saying it. गाओ बोलने के बजाय। हालेलुया। जब हम कहेंगे टेस्टिमनी के लिए, किसी टेस्टिमनी है तो यहाँ आकर टेस्टिमनी गाओ। हालेलुया, दैट्स अ न्यू सॉन्ग। प्रेज गॉड। हालेलुया। जितना चाह आप अंदर ऐसे लेकर आओगे ना, उतना अंदर से वो आ जाएगा। हालेलुया। सो गेट अ सॉन्ग, गेट अ हिम, गेट अ स्पिरिचुअल सॉन्ग। ओके, मैं ये नहीं कह रही हूं कि ये नहीं गाना, लेकिन ये भी गाते समय फुल मीनिंग के साथ गाना, तो फिर इट मेक सेंस। ओके, अदरवाइज इफ यू आर जस्ट सिंगिंग सॉन्ग, इट डजंट मेक सेंस। जो भी हम गाते हैं वो पूरे मीनिंग के साथ गाओ। और अगर वहां से एक पैराग्राफ ये मेरे आज के हफ्ते के बारे में है, तो वो वापस गाओ। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी जब हम गीत गाते हैं ना, तो उसकी कभी कभी एक पैराग्राफ ना हमारे जीवन को टच करता है। हमको मालूम है ये पैराग्राफ मेरे जीवन में बिल्कुल फिट बैठ रहा है। हालेलुया। तो जब आप यहाँ से जा रहे हो, वो गाते रहो। हालेलुया। यहाँ आकर गवाही दो वो पैराग्राफ के बारे में, आपका नया गीत बोलने के बजाय गाओ, हो सके तो। दैट्स अ न्यू सॉन्ग। आमेन। I always put this challenge to the musicians. I say you just have to sing with all your heart. The musicians will take care of the chord. Don't worry. If not anything, then they'll play the Jesus chord. Hallelujah. Get a new song, get a spiritual song. Wait for each other. एक दूसरे के लिए इंतजार करो। क्या होता है कि हम जल्दी जल्दी भाग रहे हैं। अगर क्या जल्दी भाग सकते हो, एक दूसरे के लिए इंतजार करो, वचन कहता है। उधर जाओ उसको लेकर। हालेलुया। उसको भागने में मदद करो। वेट फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए इंतजार करो। ओके, एक दूसरे को सुनो। बाइबल हाउस चर्च में एक दूसरे कोई क्या कह रहा है सुनो। 2 कान दिए हैं प्रभु ने, 1 मुंह, लेकिन हम बोलते ज्यादा है, सुनते कम है। 2 कान दिए हैं ताकि हम सुने ज्यादा, बोले कम। राइट? तो सुनो कि सामने वाला क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है। कहते समय उसके चेहरे पे एक्सप्रेशन, दुखी एक्सप्रेशन है, शायद वो हंस रहा है, लेकिन आपको पहचान आ रहा है कि कुछ है। राइट? लिसन, अंडरस्टैंड द ऑपोजिट पर्सन। जब आप ऐसे करोगे तो ऑटोमेटिकली जो है everything will fall into place. Unity will come, understanding will come. Okay, everything will come. और जब हम सब इस तरह से जो आत्मा हमारे अंदर है उससे अगुवाहित होकर जैसे जैसे हम जिएंगे, वैसे वैसे फिर prophetic utterances will automatically happen. भविष्यवाणी की बोली ऑटोमेटिकली हमारे बीच में से आएगी। हालेलुया। तो ये है गैदरिंग। आमेन। तो ये हम अपने घरों में भी लागू करेंगे और यहाँ इस परिवार में भी हम लागू करेंगे। आमेन। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि जब आप आए कि आप अपने व्यक्तिगत परिवार से अलग बैठो, क्यों? हमको एहसास होना है अब कि हम ये भी एक परिवार है। हालेलुया। तो हम सबको एक दूसरे के साथ बैठना, यहाँ पर मौका है। घर पर हम साथ में ही हैं, व्यक्तिगत परिवार साथ में ही है, तो यहाँ पर जब हम आते हैं तो हमको एक और बार एक दूसरे के साथ बैठने का मौका मिलता है।
हालेलुया। एक दूसरे के साथ मिलने का मौका मिलता है, बात करने का मौका मिलता है। नहीं तो फिर बस हम संडे को आकर एक दूसरे को देखकर वापस जाते हैं, अगले संडे को मिलते हैं। तो वहां पर वो परिवार, परमेश्वर का परिवार होने का हैबिट, वो जीवन शैली कैसे आएगी? In our busy life, we have to do something like this by which we will live like the early church. शुरुआती कलीसिया की तरह फिर से बने, इसके कोशिश में हम इस सब में इस तरह से शुरू करेंगे। हालेलुया। हमने हैप्पी ये चेंज आ रहा है, हैप्पी है कि ओल्ड वेज वाज बेटर? ये वाला स्टाइल बेटर है? यस सिस्टर लूज, ब्रदर किशोर, this is better? So we'll apply it, right? And we'll be a family. Amen. Come, we'll stand and we'll thank God. धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस समय के लिए। प्रभु, जो भी आपने हम सबको सिखाया है इस शाम को, हम धन्यवाद करते हैं। हम सब ने इतना आज सीखा, समझा, जाना, जो आप चाहते हैं कैसे हम जिए, खुद के जीवन में भी और आपके परिवार के सदस्य होने के नाते आपके परिवार में भी किस तरह से जीना है, हमको आपने समझाया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। और इस समय हम प्रार्थना करते हैं, हम सभी का आप सहायता करो प्रभु, ताकि हम एक दूसरे पर विश्वास करें, एक दूसरे की सहायता बने, एक दूसरे की ताकत बने प्रभु, और एक दूसरे को उठाए, ताकि हम सब साथ में परिपक्व होते जाए और विजयी हासिल करते जाए। साथ में एक परिवार होने के नाते प्रभु, आपने ये विजय हम सबको दिया है प्रभु, आपकी कलीसिया को ये विजय दिया है प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। और इस विजय के साथ, इस आनंद के साथ प्रभु, हम दिल से कहते हैं धन्यवाद प्रभु कि ये आपकी योजना है, ये आपकी योजना है प्रभु, जो अनंत काल का जीवन का आनंद यहीं से लेना शुरू करना। हम धन्यवाद करते हैं कि ये जीवन भी इंटरेस्टिंग होगा आपकी योजना को फॉलो करने से। तो हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु मसीह, आपने जो भी किया है। धन्यवाद पवित्र आत्मा कि आप हमारे अंदर है, हमारे मार्गदर्शन आप कर रहे हो प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। ओ धन्यवाद, थैंक यू फादर। बी विथ ऑल ऑफ अस लॉर्ड, हम सबके साथ रहो इस हफ्ते भर में प्रभु, और हमारी सहायता करो पवित्र आत्मा, ताकि हर दिन हर एक पल प्रभु हम आपके महिमा के लिए जिए, और जो भी हम करें, जो कुछ भी हो, वो आपके महिमा के लिए हो पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के महान नाम से हम सब ये प्रार्थना करते हैं। आमेन एंड आमेन। गॉड ब्लेस यू, और एक आशीषित हफ्ता आप सभी का हो।